about the pricing, right? So today we are going to discuss about not pricing exactly. Today we are going to complete the service blueprint and mapping. Because this is the one of the important question which is already asked in your previous question paper. I already saw that. That is already mentioned. This question is mentioned in that. So today we are going to complete this topic, and after that we'll come service sectors. Okay, how many service sectors are present in India and what are those? Okay, so we are going to complete these two topics, and after completing these two topics, if we'll get some time, we'll complete the pricing strategy. Okay, so topic, I just want to know that whatever we discussed in the last class, who is going to elaborate, who is going to tell me about it? Raise your hand. कौन बताएगा मुझे उसके बारे में जो लास्ट क्लास में हुआ था? Who is going to tell me? And one more thing, I am just repeating of pricing. What are the various objectives of pricing and what are the various factors of pricing? Who is going to tell me about it? Raise your hand. कौन बताएगा मुझे? Raise your hand. We pay for goods or services. ये हो गया प्राइस. प्राइसिंग हुआ वो प्रोसेस या एक्टिविटी जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए उसको बाय करने के लिए. अब इसका ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग? हम प्रोसेस या एक्टिविटी जिससे पता चलता है कि मतलब क्या प्राइस रखना है कि कस्टमर बाय करे. Which pricing strategy which is need to use to fix the price of the product so that we can easily influence the customer toward our product and services. Okay, so it is a kind of process through which we are easily analyze that which pricing strategy is suitable for the product and price whatever we are offering. Yes, next. मैम फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग जिसमें कि पहला है सर्वाइवल प्राइस. अगर हम लोग मार्केट में और कुछ बेच रहे हैं तो मतलब इतना होना चाहिए कि जितना प्रिंसिपल हम जितना कैपिटल लगाए हैं उतना वापस मिले. तो इसके लिए हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम लोग पैसा लेंगे, कुछ फ्री में नहीं दे सकते हैं. तो ये हो गया सर्वाइवल प्राइस. दूसरा हो गया प्रॉफिट मैक्सिमम. सर्वाइवल इज समथिंग, सर्वाइवल का मतलब होता है वो जिंदा रहे. बेसिकली कौन? कंपनी. तो कंपनी सर्वाइव करे. लॉन्ग टर्म में वो तभी चलेगी जब बेसिकली वो सर्वाइवल वाले स्टेज में भी पहुंचे. अगर आप कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि यू आर टेकिंग द लेस मार्जिन ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट इफ यू आर नॉट इवन एबल टू बेसिकली कवर द इनिशियल अमाउंट और कैपिटल, मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए. ठीक है, सो फॉर सर्वाइवल पर्पस द प्राइसिंग, सेटिंग द प्राइस is very much important, that how much amount we are going to take from the consumer, because for paying everyone, either employees, for buying machinery, assets, for basically making the proper company's atmosphere, we need money. Okay, without it the company is not going to work for the long time. Okay, next point, Toshi. नेक्स्ट है मैम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना, यानी कि जितना हम लोग कैपिटल अमाउंट लगाएं उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा उस पे रिटर्न मिलना. Why profit is required? Why profit is required? मैम बिजनेस को रन करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे. बिजनेस को रन करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए. Because if you started your business with one branch, maybe you want to exceed it for more branches you want to open, right? You want to open more chains, and for that, for growth, for increasing the market share, what we need profit. If we are not able to earn profit जब earn नहीं करोगे तो cost of production से जब ऊपर पैसा नहीं कमाओगे तो अपने pocket से cost of production का पैसा थोड़ी लगाओगे. क्लियर हो गया ना? तो अगर आप cost of production से ऊपर नहीं कमाओगे तो तब तक आपका growth possible नहीं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. हम उसके बाद है मार्केट शेयर. इसमें कि जो प्राइस है वो हेल्प करता है मार्केट शेयर को इम्प्रूव करने में, यानी कि जिस एरिया में हम लोग सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एरिया को रिटेन करने में हेल्प करता है प्राइसिंग. तो प्राइसिंग जो भी स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करेंगे, दैट विल बी इन अ कॉम्पिटिटिव वे, बिकॉज वी वांट टू रिटेन इन द मार्केट शेयर और रिटेन इन दैट पर्टिकुलर मार्केट एरिया. इवन वी वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. For that we can do one thing, we can keep our price low as comparison to the competitors to retain the that market share as well as to increase the market share. ठीक है, so basically
शेयर को इंक्रीज करने में, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को इंक्रीज करने में द प्राइसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. यस, नेक्स्ट पॉइंट. दूसरा है सर्विस क्वालिटी लीडरशिप. मैम इसमें था कि जितना ज्यादा प्राइस पे किया जाएगा उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए. जैसे कि एग्जांपल हाई कॉस्ट रेस्टोरेंट. So basically, if we are talking about service marketing, right? And if we are think about the pricing for the product also, even just imagine कि अगर एक 5-star hotel और एक normal restaurant में बहुत ज़्यादा difference होता है. Why? The difference of the atmosphere, the difference of the quality, the difference of the product, right? तो service quality को अगर हम pricing को proper fix करेंगे, तो that is also going to indicate about the quality of the service which you are going to provide, right? For example, if someone is taking like some doctor fees 500 rupees and some doctor's fee is like 2000 rupees, the difference is all totally up to the demand के ऊपर and the quality of service they are serving. अगर आप high price रखिएगा तो आप पूरा depend करता है इस चीज पे, प्राइस पे, कि आप क्या क्वालिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हो. और अगर आप हाई प्राइस भी रखेंगे और लो क्वालिटी प्रोवाइड करिएगा तो डेफिनेटली योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू रन. बट विद द प्रीमियम क्वालिटी यू हैव टू सेट द प्रीमियम प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट, मींस इट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन फॉर pricing is an indication of the quality of services. Yes, what are the various factors? Who is going to tell me about it? Various factors of the service pricing. What are the various factors which is affecting the service? मैम डिमांड हो गया, फर्स्ट फैक्टर डिमांड हो गया कि अगर सर्विस हमारा जो मार्केटर सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है उसके डिमांड के बेसिस पे भी मार्केटर उसका प्राइसिंग करते हैं. और फिर मैम हो गया जैसे टेक्नोलॉजिकल नहीं हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मैम, जैसे कि जो मार्केट में जिस अगर टेक्नोलॉजी का जो चेंज आ रहा है उस हिसाब से भी प्राइसिंग होता है. देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी एक प्राइसिंग को बहुत इंटरनल अच्छा फैक्टर्स. मैम मैंने एक ही साथ सारा लिखा था, इंटरनल एक्सटर्नल अलग नहीं लिखा था. आप लोगों ने. यस मैम, इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट है कंपनी ऑब्जेक्टिव. इसमें फोकस करते हैं कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्ट क्या है, मार्जिन क्या है, इस सब पे डिपेंड करता है. उस हिसाब से प्राइस इफेक्ट करता है. दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसमें बेसिकली हम लोग जैसे पूरा प्राइसिंग डिसीजन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजर ही लेते हैं कि मतलब स्ट्रक्चर क्या है किसी भी फर्म का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सिस्टम बना है. फिर उसके हिसाब से यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो भी लीड करता है. और तीसरा हो गया मार्केटिंग मिक्स. यहाँ पे है कि सारा पीस अफेक्ट करता है, जितना भी पीस होता है. पहले की प्रोडक्ट क्या है, फिर हम प्रमोशन उसका कैसे कर रहे हैं, फिर फिजिकल एविडेंस क्या क्या यूज हुआ है उसमें, उसका प्रोसेस क्या है, फिर कौन से पीपल्स उसमें यूज हो रहे हैं. और ये सारा इफेक्ट करेगा प्राइस को इंक्रीज भी करने में और डिक्रीज भी करने में. फिर फोर्थ है मैम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है उस हिसाब से प्राइस फिक्स होगा. उस पे ही डिपेंड करता है कि कैसे लॉस होगा और किस तरीके से प्रॉफिट होगा. फिर है मैम इंटरनल फैक्टर, सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर. यस, एक्सटर्नल में फर्स्ट है डिमांड. डिमांड है मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ेगा. ऐसे हम लोग जानते हैं कि डिमांड बढ़ता है तो प्राइस घट जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्विस के केस में होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ये मतलब एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है बेटा. जैसे कि अगर कभी कभार कुछ इमरजेंसी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं तो कोई रिलेशन आपके प्राइस के साथ नहीं होता, उसका डिमांड जो है वो कांस्टेंट उसी तरीके से बढ़ता रहेगा बिकॉज़ दैट इज द एसेंशियल सिचुएशन मार्केट के बेसिस पे. बिल्कुल सिचुएशन के बेसिस पे. और दूसरा क्या होता है कि अगर आपकी डिमांड की वजह, अगर आपका एक्सट्रीम डिमांड है मार्केट में, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रीम सेल हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप ना दोनों सिचुएशन रख सकते हो. या तो आप प्रोडक्ट का प्राइस, लेकिन वो एसेंशियल में ज्यादा सुटेबल होगा, आप प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज ही करोगे क्योंकि आप जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक रीच कर जाओगे ना. एक्सट्रीम आपके प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप प्रोडक्ट का प्राइस को लो कर सकते हो, कम रेट में कम मार्जिन में सेल करोगे, तब भी आपको बेनिफिट होगा क्योंकि कस्टमर बेस आपके इंक्रीज होंगे.
शायद नहीं, लास्ट क्लास में जो मैंने पॉइंट बताया था इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो। इसेंशियल सर्विसेज के केस में अगर डिमांड बढ़ेगा तो आप प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाओगे, तब भी डिमांड आपका कांस्टेंट रहेगा। बट इन द केस ऑफ द नॉर्मल अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है जैसे ही इंक्रीज, आपके प्रोडक्ट का डिमांड जैसे ही इंक्रीज होगा, जैसे ही आपके कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे, वैसे ही यू कैन कीप योर प्रोडक्ट प्राइस लो। ठीक है, ओके नेक्स्ट ठीक है। बेटा। दूसरा मैम कंपटीशन, जैसे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से हम लोग प्राइस सेट करते हैं। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर अपना प्राइस बढ़ा रहा है तो उस हिसाब से हम लोग मार्केट को देखते हुए अपना भी प्राइस बढ़ा देते हैं। फिर तीसरा है बायर्स, बायर्स पे भी प्राइस डिपेंड करता है। शिवानी, दोनों कंडीशन हो सकता है बेटा। कॉम्पिटिटर्स जो है इफ दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस, यस मैम, अगर प्राइस बढ़ा रहा है तो बढ़ाएंगे, अगर लो कर रहा है तो लो भी करेंगे। लो करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जिसका भी मार्केट में मोनोपोली होता है हमेशा जो प्राइस रेगुलेशन होता है उसके थ्रू होता है, बस इसेंशियल कमोडिटीज को छोड़ के, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से उसका प्राइस रेगुलेट होता है। बाकी जो प्राइस होता है कई बार आपके मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई के फोर्स से चलते हैं, और साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर्स जो मोनोपोली जिनका पोजीशन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है वो अगर प्राइस लो और हाई करते हैं तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज वेल। सो वी जस्ट नीड टू बेसिकली ट्रैक और फॉलो द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, राइट। चलिए यस मैम, तीसरा है बायर। बायर्स पे भी प्राइस डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगर किसी एक प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा लाइक कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है और साथ साथ डिमांड भी उसका बढ़ जाता है। और चौथा हो जाएगा मैम सप्लायर। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से हम लोग अपना प्राइस भी बढ़ाएंगे। सप्लायर जैसे रॉ मटेरियल्स के टर्म्स में हो गया, फिर जैसे जैसे कॉस्ट चेंजेस हो गया उस बेसिस पे ही अपना प्राइस जैसे चेंज करते एग्जाम्पल में रहे। मैंने बताया था कि जैसे ही आपका पेट्रोल का रेट बढ़ता है वैसे ही जो Yes. ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, आपके फूड मटेरियल जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये, और बायर्स में एक चीज ये था आपका कि आपके जो बायर है यानी कि कौन आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो जो प्रोडक्ट का डिमांड जो है किसी, जैसे कलर्स को ले लो या किसी भी चीज को ले लो, तो कई बार कुछ कंज्यूमर्स का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिमांड होता है, तो ऐसे केस में अगर उसका भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो तब भी हम वही सेम सिचुएशन लाएंगे, प्राइस लो करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ है इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें क्या होगा कि जैसे जीडीपी डिक्रीज कर गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर जैसे जो भी बढ़ गया नहीं, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। हाँ इन्फ्लेशन आ गया, शेयर प्राइस वगैरह आ गया मार्केट में, फिर ये सारे इकोनॉमिक कंडीशन। शेयर प्राइस नहीं आया बेटा, हाँ ठीक है। क्या होता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जैसे कि आपके टैक्सेस वगैरह जो चेंज वगैरह हो जितना रहे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह रूल्स वगैरह बनाया वो भी प्राइस को अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में 2020 में आपका सैनिटाइजर इज वन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई। इसीलिए जो सैनिटाइजर का प्राइस कैसे रेगुलेट हुआ पता है, इसका प्राइस कितना था पहले, इतने छोटे का 77 था, अभी प्राइस कितना कम है, लाइक इट्स अराउंड आई गेस इट्स 100 ml, yeah exactly, because now it is a part of the essential commodities, essential commodities act 2020 में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट, व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि सर्विस ब्लूप्रिंट क्या होता है। सर्विस ब्लूप्रिंट एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि आप सर्विस के आपके पॉइंट्स कहाँ होंगे, सर्विस जो प्रोवाइड करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स जो है बैक एंड में कौन होंगे, फ्रंट एंड में कौन होंगे, कंज्यूमर के साथ डील करेंगे, कहाँ पर कस्टमर्स जो है बेसिकली अब प्रोसेस करेंगे, पेमेंट प्रोसीजर हो गया, एंट्री करना, फिर उसके बाद फिर किसी से बात करना, मतलब मैनेजर्स कहाँ होंगे, मतलब एवरी पॉइंट्स ऑफ द सर्विसेज, जहां सर्विस के पॉइंट होंगे, किस तरीके से बेसिकली वो उसको हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। यस अक्षय, नेक्स्ट ये तो इंटरनल में आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसमें कुछ पॉइंट कि सर्विस ब्लूप्रिंट क्या होता है, लिखिए सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने कुछ भी इस पे? नो मैम। ठीक है, तो लिखते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट visualize organizational process, visualize organizational process
in order to optimize how a business delivers a user experience. सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है? दैट इज अ विजुअलाइज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, यानी किस तरीके से सारे स्टेप्स और सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे कंज्यूमर्स को, इसका एक विजुअल एस्पेक्ट, एक डायग्रामेटिक एस्पेक्ट्स बनाया जाता है, रेडी किया जाता है, ठीक है, ताकि हम जो है बिजनेस को किस तरीके से प्रॉपर डिलीवर करें, किस तरीके से ऑप्टिमल यूटिलाइज करें रिसोर्सेज का, और साथ साथ में जो हमारे एंड यूजर, हमारे कंज्यूमर है, वो बेटर एक्सपीरियंस ले, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस ब्लूप्रिंट विजुअलाइज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज हाउ अ बिजनेस delivers a user experience, deliver a user experience. Service blueprint visualize organizational process in order to optimize how a business delivers a user experience. तो इसको हम कहते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट, ठीक है। सर्विस ब्लूप्रिंट में ये तो थोड़ा सा बस पॉइंट था, अगर और भी आगे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि सर्विस ब्लूप्रिंट इज अ डायग्राम, सर्विस ब्लूप्रिंट इज अ डायग्राम that visualize relationship. Service blueprint is a diagram that visualize the relationship between different service components, यानी जितने भी components है सर्विस के, उसको कैसे यहाँ पर किस तरीके से सेट करेंगे, डायग्रामेटिक एक विजुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब वो कंपोनेंट्स कौन-कौन से होंगे, इसके कौन-कौन से सर्विस के कंपोनेंट होंगे? पीपल, बिकॉज़ सर्विस के लिए पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होता है, जैसे कि आपके टेबल, चेयर्स, डेकोरेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, काउंटर्स। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, और इसमें डिजिटल एविडेंस भी आ जाएगा, डिजिटल थिंग्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आगे डिफरेंट सर्विस कंपोनेंट, डैश दीजिए आगे और लिखिए पीपल कॉमा प्रॉप्स, PROPS, प्रॉप्स, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रॉप्स में फिजिकल और डिजिटल एविडेंस, फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस क्या होता है? हम जिस एरिया में सर्विस दिया जाता है, फिजिकल एविडेंस, हम जहाँ सर्विस दिया, सर्विस केम नहीं पूछ रही बेटा, आई एम आस्किंग फिजिकल एविडेंस क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल एविडेंस? फिजिकल एविडेंस क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, आपके फर्नीचर्स हो गए, दीज आर द फिजिकल एविडेंस। लोगो हो गया, फिर आपके प्रिंट जो होते हैं बेसिकली कार्ड्स वगैरह, बिजनेस कार्ड्स वगैरह हो गया, ये सारे आपके क्या होंगे? फिजिकल एविडेंस, ठीक है। हम तो जहाँ सर्विस दिया जाता है वो भी तो। एविडेंस का मतलब जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, लिखिए डिफरेंट सर्विस कंपोनेंट्स में डैश दीजिए पीपल, प्रॉप्स में लिखिएगा ब्रैकेट में बोथ थिंग, प्रॉप्स में ब्रैकेट में दोनों लिखिएगा, फिजिकल एविडेंस एज वेल एज डिजिटल एविडेंस, ठीक है, दोनों आ जाएंगे आपके प्रॉप्स में, PROPS, प्रॉप्स। एंड साथ में एक और चीज होगा, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब स्टेप्स, जैसे कि हमने पेमेंट के लिए लाइन में खड़े हैं, उसके बाद जाके पेमेंट किया, हमने कार्ड यूज किया, प्रोसेस हुआ, फिर आपका ऑर्डर टेक प्लेस, मतलब दे टेक योर ऑर्डर, देन आफ्टर दैट दे विल गिव यू नंबर कि आपका ये इतने देर बाद आपका क्या होगा, आपको ऑर्डर रिसीव होगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज प्रोसेस। ये सारी क्या चीज होंगे? आपकी प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस भी हम लोगों ने क्लास में किया है। प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जहां पर कोई स्टेप्स जो डिफाइंड स्टेप्स हो, जिसके थ्रू आपके कंज्यूमर्स जो है पास ऑन करते हैं। कैसे कि कौन-कौन से इसमें स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को Amazon का एग्जांपल दिया था कि एक ऑलरेडी उसका प्रोसेस बना हुआ है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा, फर्स्ट यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द प्रोडक्ट, आफ्टर दैट व्हेन यू विल सिलेक्ट द फर्स्ट प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया, एक प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट, आफ्टर दैट यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, फॉर दैट व्हाट यू विल डू, you will just keep it in your cart, and after that you place your order, click on that place your order,
Place on order के बाद your address will be confirmed. Your address is this. How via which way you want to pay. मतलब payment on delivery या मतलब COD cash on delivery. Cash on delivery. हाँ, तो ये सारी चीजें हैं. उसके बाद लास्ट पॉइंट कि यार कंफर्मेशन जो है वो मिल जाएगा एंड फाइनली जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा. तो ये एक प्रोसेस होता है. तो इसमें ये तीनों चीज इंक्लूडेड होगी सर्विस ब्लूप्रिंट में. और ये क्या क्या चीजें होगी, पहले की लोग पीपल कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर सिचुएटेड होंगे फर्स्ट. सेकंड, कौन कौन सी प्रॉप्स को हम यूज करें. अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसमें हम कैसे कैसे इंफ्रा को किस तरीके से मेंटेन करेंगे. फिजिकल एविडेंस वगैरह क्या होगा, मतलब कि किस तरीके से लोगोस, यूनिफॉर्म्स, ईच एंड एवरीथिंग. उसके साथ साथ डिजिटल एविडेंस यानी डिजिटल डेटा प्रेजेंट करेंगे. आजकल तो डिजिटली ऑर्डर भी प्लेस होता है, ठीक है. सो डिजिटल एविडेंस को यूज करेंगे एंड फाइनली होल प्रोसेस यानी किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है आपका होगा. तो ये सारे के सारे आपकी सर्विस ब्लूप्रिंट के डायग्राम में मेंशन होंगे. आगे लिखिए, इसी में आगे लिखिए डिजिटल एविडेंस हो गया एंड प्रोसेसेस डैश देके अब आगे लिखिए that are directly tied tied to touch points. मैम प्रोसेस अलग पॉइंट है ना. इसमें साथ ही में a service blueprint is a diagram that visualize the relationship between the different service components, people, props and process that are directly tied tied to touch point in a specific customer journey. यानी इन सबको इस तरीके से एक साथ टाई किया जाएगा कि कस्टमर कैसे कैसे अपनी जर्नी को पूरा करे, कंप्लीट करे. ठीक है, तो इसको कहेंगे सर्विस ब्लूप्रिंट. इसको क्या कहेंगे, सर्विस ब्लूप्रिंट एंड मैपिंग. ठीक है, यानी कि मैप की तरह हम इसको क्या करेंगे, रेडी करेंगे. जैसे इंडिया का फिजिकल मैप सबने देखा होगा, देखा है ना. यस मैम. उसमें स्टेट्स वगैरह को देखते हो किस तरीके से शोन होता है. पॉलिटिकल मैप होता है, गेस वो पॉलिटिकल मैप है. तो पॉलिटिकल मैप में आपने देखना अलग अलग स्टेट्स कैसे होते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर आपके अलग अलग बेसिकली प्रोसेस को यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिक वे में. चलिए, डेफिनेशन क्या है इस समझ में आया. सर्विस ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है. तोशी, व्हाट हैपेंड. हम आगे बढ़ते हैं. सर्विस ब्लूप्रिंट क्लियर हो गया सबको, मीनिंग सबको कंप्लीट क्लियर. नेक्स्ट आते हैं कि क्या बेनिफिट्स होता है. सर्विस ब्लूप्रिंट के क्या बेनिफिट है. ठीक है, सर्विस ब्लूप्रिंट के क्या बेनिफिट है, इसको पहले लिखिए, फिर मैं आप लोगों को सर्विस ब्लूप्रिंट का एक एग्जांपल अभी डायग्राम शो करूंगी. ठीक है, सो सर्विस ब्लूप्रिंट एक कॉम्प्रिहेंसिव वे है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. ठीक है, प्रोसेस कैसे आप बेसिकली किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हो. ठीक है, फोकस कर सकते हो आप जब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, जब आप बिल्कुल फेस टू फेस उस चीज को देखोगे तो उससे बेटर है कि आप पहले ही उसके लिए रेडी रहो. ठीक है, तो एक तरीके का एक अप्रॉक्स वाला सिचुएशन है, बट अप्रॉक्स इज यूज्ड इन द नंबर्स. मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आगे चल के, वो एक ब्लूप्रिंट आपको सर्विस ब्लूप्रिंट शो कर सकता है. ठीक है, और ब्लूप्रिंट जो है वो वीकनेस मतलब आपकी कहाँ कहाँ कमी हो सकती है बिजनेस में, आपके सर्विस में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी डिस्कवर करेगा. ठीक है, अगर ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो उन वीकनेसेस को भी हम कोशिश करेंगे दूर करने का. ठीक है, बट स्टिल वही एक्सपीरियंस वाली बात होती है कि मे बी प्रैक्टिकली वी कैन डू ऑल दीज चेंजेस, बट मे बी हो सकता है पॉसिबली आगे चल के ना हो. ठीक है, पुअर यूजर एक्सपीरियंस अगर होता है तो ऑब्वियसली वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के कमी की वजह से होता है, और इसी वीक लिंक को हम दूर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द सर्विस ब्लूप्रिंट. फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया. वी कैन इसको पॉइंट को सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लिखिए इसमें. फर्स्ट डिस्कवर, इसका बेनिफिट का पहला पॉइंट डिस्कवर वीकनेसेस. डिस्कवर वीकनेसेस, डिस्कवर वीकनेसेस, डिस्कवर वीकनेसेस. अब इसमें आगे लिखिए डिस्कवर वीकनेसेस में पॉइंट्स को लिख लीजिए. लिखिए blueprint. Service blueprints give an organization a comprehensive. Service blueprint gives
an organization a comprehensive understanding of its service, and underlying resources and process. ठीक है, and process. Focusing on this larger understanding, the aspects. Focusing on this larger understanding, bracket में लिखिए alongside more typical service blueprint give an organization a comprehensive understanding of its service and the underlying resources and process. ठीक है, आगे लिखिए focusing on the larger understanding, ठीक है, larger understanding, provide strategic benefit, जो आगे typical वाले लिखवा रही थी उसको मत लिखना, provide strategic benefits for the business, it is a kind of planning, मतलब planning करने के लिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसको समझने के लिए बहुत बेटर है आपका सर्विस ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये आपको फोकस करता है कस्टमर के परसेप्शंस पे भी और साथ साथ आपके टच पॉइंट्स पे भी और प्रोसेस पर भी, सब चीज पे ये फोकस करता है। आगे लिखिए blueprints are treasure maps that help business to discover weaknesses. ठीक है, सो हम अगर जाके फाइनली कुछ फेस करें फ्यूचर में, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो, उस चीज को दूर करना सबसे बेटर है। पहली ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ स्ट्रक्चर कुछ, तो ऐसे केस में हम बदलाव और चेंजेस ला सकते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट। चलिए ओके, नेक्स्ट लिखिए आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। दिस वन इज द सेकंड पॉइंट, identify opportunities for optimization. जिस तरीके से हम बेसिकली वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं, वैसे ही हम रिसोर्स को भी प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पर किस तरीके से हम कर सकते हैं, जहां पर भी ऐसा लगे कि जहां पर आपका सर्विस का जो प्रोसेस है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, यानी कि जो रिपीट हो रहा है और आपका रिसोर्स टाइम एफर्ट जो वेस्ट हो रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी द प्रोसेस विच इज रिपीटिंग, ठीक है, वी कैन एलिमिनेट इट एंड वी कैन मेक इट शॉर्ट। ठीक है, उसको छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्रोसेस जो लॉन्ग है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो इसमें आगे लिखिए आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑप्टिमाइजेशन में आगे लिखिए the visualization of relationship in blueprints, uncovers potential improvements and uncovers potential improvements. The visualization of relationship in blueprints uncovers potential improvement and ways to eliminate redundancy. ठीक है, redundancy को eliminate करने में बेसिकली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, eliminate करेगा बेसिकली किस चीज को, ये आपके रिपीट जो हो रहे हैं सर्विसेज के प्रोसेस वगैरह उसको eliminate करने में, उसको कम करने में हेल्प करेगा। रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं उसको ये बचाने की कोशिश करेगा और रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं आप सर्विस ब्लूप्रिंट के थ्रू। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के बाद क्या बोली मैं? The visualization of relationships in blueprints uncovers potential improvement
improvement, uncover potential improvements and ways to eliminate, and ways तरीके बताएगा, ways to eliminate redundancy, REDUNDANC, redundancy. अब इसका एग्जाम्पल क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा. मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मानिए इंफॉर्मेशन गैदर्ड अर्ली ऑन द कस्टमर जर्नी कुड पॉसिबल बी रिपर्पस्ड लेटर और बैक स्टेज. यानी कि बेसिकली अगर हमें पहले कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ब्लूप्रिंट एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को अर्ली पहले गैदर कर रहे हैं कस्टमर के जर्नी से पहले, तो हो सकता है कि आप जो है पहले बैक स्टेज के लिए वर्क के लिए रेडी रहे. ठीक है. अब इसका 3 इफेक्ट हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है या तो वो डिलाइट होगा, ठीक है. सेकंड हो सकता है कि आपका सर्विस जो है वो टाइम और एफर्ट को बचाएगा, और तीसरा जो है एम्प्लॉय का टाइम और इंफॉर्मेशन को गैदर करने में टाइम नहीं लगेगा. यानी कि व्हाट वी कैन से दैट इट इज दिस ब्लूप्रिंट इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द लेटर टाइम. जो आप रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कंज्यूमर से कुछ इंफॉर्मेशन को भी गैदर कर सकते हो अगर आप चाहो तो अर्ली, जब बाद में जो वो कस्टमर आए और सर्विस ले उससे पहले जस्ट ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर एज वेल. ठीक है. तो ये भी हम ब्लूप्रिंट के थ्रू कर सकते हैं. मतलब ब्लूप्रिंट एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. व्हाई दे सेड दिस पॉइंट आई हैव नो आईडिया, बट इसको बस याद रखिएगा कि अगर कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि जहां पर आपके रिसोर्स ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं और उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन यूज द सर्विस. ठीक है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कहाँ रिड्यूस करना है हमें स्टेप्स को. नेक्स्ट लिखिए ब्रिजेस क्रॉस डिपार्टमेंट एफर्ट. ब्रिजेस क्रॉस डिपार्टमेंट एफर्ट, ये सारे बेनिफिट्स लिखवा दिए. ब्रिजेस क्रॉस डिपार्टमेंट एफर्ट्स. ब्रिजेस क्रॉस डिपार्टमेंट एफर्ट्स. ठीक है. सो ब्लूप्रिंट जो है इट इज यूजफुल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द कॉम्प्लेक्स सर्विस. ठीक है. क्योंकि ये ब्रिज कर देता है क्रॉस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके एफर्ट्स को. ये बोल सकते हैं कि ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है. ठीक है. अब ये जो है इसमें लिख लीजिए, एक लाइन से लिखिए, ब्लूप्रिंटिंग इज यूजफुल, इट इज यूजफुल when coordinating complex services. Blueprinting is useful with coordinating complex services. ठीक है. यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करें उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है कौन, ब्लूप्रिंटिंग. ठीक है. आगे आप लिखिए, एक लाइन इसमें और लिख लीजिए, ब्लूप्रिंटिंग फोर्सेस बिजनेसेस to capture that occurs internally. See, whatever we are going to do in the organization, external, no, internal. Blueprinting forces businesses to capture that occurs internally throughout the totality of the customer journey, giving them insight to overlaps and dependencies that department alone could not see. Blueprinting forces businesses to capture that occurs internally throughout the totality of the customer journey, giving them insight to overlap and dependencies that departments alone could not see. यानी ब्लूप्रिंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को भी बेसिकली एनालाइज करने में हेल्प करेगा. कैसे कौन सी जर्नी है, कौन सा डिपार्टमेंट जो उनका वर्क ओवरलैप हो रहा है, प्रोसेस ओवरलैप हो रहा है, तो जो अकेले एक डिपार्टमेंट एनालाइज नहीं कर सकता है, वो ब्लूप्रिंट के थ्रू सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो बेसिकली उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं. ठीक है. अब जैसे कि ब्लूप्रिंट, अगर मैंने उस दिन एग्जांपल में बताया था कि एक पर्टिकुलर कोई रेस्टोरेंट का अगर हम ब्लूप्रिंट लेते हैं तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. बट हम अगर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेंगे तो उसके ब्लूप्रिंट अलग अलग डिपार्टमेंट, HR, फाइनेंस,
पर जो है ब्लूप्रिंट जो है आपको एक बेसिकली जर्नी दिखा सकता है, एक आपको आइडिया दे सकता है, आपको एक इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है कि कस्टमर जो है वो किस थ्रू वो मूव करेगा और हमें प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक डिलीवर करना है, सर्विस को कैसे डिलीवर करना है। इसको देखिए, एक मिनट में दिखा दूं। दिख रहा है सबको? दिख रहा है बेटा? सब लोग को दिख रहा है? देखिए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये देखिए सर्विस ब्लूप्रिंट का एग्जांपल। एविडेंस क्या हो सकता है, क्या क्या एविडेंस? टाइम देखिए क्या लगेगा, 5 to 25 मिनट्स ऑन एन एवरेज हमने मान लिया, 5 से 12 दिन, मतलब ये टाइम एविडेंस कस्टमर का जर्नी। एविडेंस में क्या क्या होगा आपका? वेबसाइट, रिटेल लोकेशन, स्टोर साइनेज वगैरह, अप्लायंसेस साइनेज, क्योंकि यहाँ पर ब्लूप्रिंट में हम दोनों चीज यूज कर रहे हैं, फिजिकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और प्रोसेस, और साथ साथ लोग सबको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम टैग वगैरह, प्राइस टैग, क्रेडिट कार्ड, स्टोर रिसिप्ट, एवरीथिंग कम्स अंडर द एविडेंस। ठीक है, फिर अप्लायंस, डिलीवरी, रिसिप्ट। कस्टमर का जर्नी कैसे शुरू होगा? विजिट करेगा वो वेबसाइट को, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहाँ पर सपोर्ट चैट होगा, यानी कि चैट कर सकते हैं जैसे हम लोग भी चैट करते हैं, या तो मतलब वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, या तो फिर वो फिजिकली जाके कहाँ जाएगा? स्टोर में जाएगा। ठीक है, तो विजिट वेबसाइट करेगा तो सपोर्ट चैट के थ्रू वो कोई भी क्वेरी कर सकता है। यहाँ पर वो स्टोर में जाएगा, स्टोर में जाएगा, विजिट करेगा स्टोर में, तो वहां पर वेलकम होना चाहिए स्टोर का, और वो किसके थ्रू होगा? बेसिकली आपके एम्प्लॉय एक्शन फ्रंट स्टेज, यानी जो चीज कस्टमर के सामने हो रहा है, दैट इज फ्रंट स्टेज। एंड बैक स्टेज जो प्रोसेस, बैक मतलब कस्टमर को उससे इंटरेक्शन नहीं है, बट बैक स्टेज में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने डोमिनोज जाते हैं तो भाई ऑर्डर देने वाले से तो हम मिलते हैं, बट बैक साइड जो आपके पिज्जा को बना रहे हैं वो तो हम नहीं मिलते, तो दैट इज अ बैक स्टेज एक्शन, राइट। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय को हम ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे स्टोर को, वो एम्प्लॉय का एक्शन होगा और वो फ्रंट स्टेज में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कस्टमर की जर्नी, यहाँ पर आपने बेसिकली सेकेंड स्टेज हुआ। अब सेकेंड स्टेज में यहाँ पर वेलकम होगा स्टोर में, विजिट करेंगे या तो वेबसाइट, या तो फिर हम जाएंगे कहाँ पर? बेसिकली आपके स्टोर में, फिजिकल स्टोर में। फिजिकल स्टोर में जाकर के कोई भी कस्टमर क्या करेगा? डिस्कस करेगा फीचर, प्राइस, अवेलेबिलिटी, किसके साथ? सेल्स पर्सन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपकी और क्या चीजें होंगी फ्रंट स्टेज और एम्प्लॉय एक्शन में? कि इन्वेंट्री को देखेंगे और डिलीवरी टाइम को देखेंगे। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का एक्शन होगा कि इन्वेंट्री को चेक करना कि भाई ये पर्टिकुलर, अगर मैं कपड़ा भी कोई भी लेने गई, कुर्ता भी लेने गई, तो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में वी कैन आस्क टू द एम्प्लॉइज, तो दैट विल बी द एम्प्लॉय एक्शन। उसके बाद जब सब कुछ डिस्कस कर लिया तो परचेज करेंगे, यानी मेक परचेज करेंगे। अब प्रोवाइड डिलीवर, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा? यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम? यहाँ पर डिलीवरी टाइम को देखेंगे। एक मिनट, यहाँ एक और चीज है कि यहाँ पर इन्वेंट्री को चेक करेगा कौन? सेल्स पर्सन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा जो बैक स्टेज में होगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के भी थ्रू, यानी कि आपके कंप्यूटर में दैट विल बी चेक दैट इन्वेंट्री इज प्रेजेंट और नॉट, सो दैट इज द बैक स्टेज एक्शन दैट इज नॉट गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर कहा जाना, इसको मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ये सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करना है मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनली परचेज होगा। फिर यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका पेमेंट प्रोसेस, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होगा, यानी कि एक जगह पे आपके काउंटर होंगे, वहां पर पेमेंट प्रोसेस होगा। अप्लायंस, फिर आपके क्यू होंगे, हो सकता है लाइन हो आपके, यहाँ पर फूड ट्रैफिक, स्कैनर और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लॉग्स विजिटर, एनालिटिक्स, लॉग विजिटर्स को मेंटेन करना, रिस्पॉन्ड करना चैट के क्वेश्चंस को ऑनलाइन, दैट इज द बैक स्टेज एक्शन। और यहाँ पर आपका अकाउंटिंग करना। ठीक है, थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस, अगर कोई डिलीवरी आपके घर तक कर रहा है प्रोडक्ट को, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर आर सो मेनी स्टेजेस, द लाइन ऑफ इंटरेक्शन वेयर द कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉइज विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, दिस विल बी द लाइन ऑफ इंटरेक्शन। द लाइन ऑफ विजिबिलिटी व्हिच इज शोन द होल प्रोसेस, कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज, द लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन, जहां पर एम्प्लॉइज जो है, मतलब कि जो बैक स्टेज के एम्प्लॉइज और फ्रंट स्टेज के एम्प्लॉइज किस तरीके से इंटरेक्ट करें।
रेटिंग का काम अलग, सपोर्ट चैट अलग, विजिट वेबसाइट, अकाउंटिंग, फुलफिलमेंट क्यू, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, फिर यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस है, थर्ड पार्टी अगर डिलीवर कर रहा है सर्विस को तो वो, तो ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द सर्विस ब्लूप्रिंट। ठीक है, चलिए पॉइंट्स को लिखते हैं पहले। की एलिमेंट्स ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट, पहले इसको लिख लीजिए फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगी। की एलिमेंट्स ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट, की एलिमेंट्स कौन कौन है सर्विस ब्लूप्रिंट के, तो पहले उसका नाम लिख लीजिए। कस्टमर्स एक्शन, कस्टमर एक्शंस, कस्टमर एक्शंस, कस्टमर एक्शंस। यहाँ पर जो लाइन ऑफ इंटरेक्शन है इसको ध्यान दीजिएगा कि द लाइन ऑफ इंटरेक्शन इज ऑलवेज बिटवीन द कस्टमर एंड द फ्रंट स्टेज एम्प्लॉइज। इंटरनल इंटरेक्शन, फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। ठीक है, लाइन ऑफ विजिबिलिटी जहां पर भी, जहां पर क्या हो गया आपकी प्रोसेस चलेंगी। ठीक है, चलिए पहला हो गया की एलिमेंट्स ऑफ द सर्विस ब्लूप्रिंट में फर्स्ट पॉइंट कस्टमर एक्शन, सेकंड लिखिए फ्रंट स्टेज एक्शंस, फ्रंट स्टेज एक्शंस, थर्ड लिखिए बैक स्टेज एक्शंस, बैक स्टेज एक्शंस, फोर्थ एलिमेंट लिखिए प्रोसेसेस, फोर्थ एलिमेंट लिखिए प्रोसेसेस, प्रोसेस, प्रोसेसेस। ठीक है, लिख लिया सबने? ये जो चार मैंने आप लोग को एलिमेंट्स लिखवाया सबने लिख लिया? मुझे लगता है ना कि आप लोग को पहले मुझे ये पॉइंट्स ही लिखवाना चाहिए था, फिर ही समझाना चाहिए था। आपकी चॉइस आ सकते हैं, स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स आएंगे, चॉइसेस आएंगे, एक्टिविटीज होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, कस्टमर परफॉर्मेंस होगा और इंटरेक्टिंग होगा किसके साथ, सर्विस के साथ टू रीच द पर्टिकुलर गोल। इसमें लिखिए सर्विस कस्टमर एक्शन में स्टेप्स कॉमा चॉइसेस, स्टेप्स कॉमा चॉइसेस कॉमा एक्टिविटीज and interactions that customer performs while interacting with a service to reach a particular goal, steps, choices, activity which is performed by the customer, किसके द्वारा परफॉर्म हो रहा है कस्टमर एक्शन में, कस्टमर के द्वारा किस चीज के लिए, फाइनली सर्विस को अवेल करने के लिए, फाइनली प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है, कस्टमर जो बेसिकली एक्शंस है, आगे लिखिए द कस्टमर एक्शंस आर डिराइव्ड, द कस्टमर एक्शंस आर डिराइव्ड, द कस्टमर एक्शंस आर डिराइव्ड from the research or कस्टमर जर्नी मैप। मतलब रिसर्च कर सकते हैं या कस्टमर जर्नी मैप के थ्रू कस्टमर के एक्शन को समझ सकते हैं, जैसे विजिट करना वेबसाइट, विजिट करना आपके ब्राउजर्स, सेल्स, आपके स्टोर्स को विजिट करना, फीचर्स को डिस्कस करना, प्राइस के बारे में पूछना, सेल्स पर्सन अवेलेबिलिटी मतलब सेल्स पर्सन से डिस्कस करना, ठीक है, और परचेज करना। तो दीज ऑल कम्स अंडर द कस्टमर जर्नी एंड these are the part of the customer's action। ठीक है, तो ये आपका हो गया कस्टमर एक्शन, स्टेप्स, चॉइसेस, एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन दैट कस्टमर परफॉर्म व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अ सर्विस टू रीच अ पर्टिकुलर गोल। कस्टमर एक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्च और कस्टमर जर्नी मैप। तो ये कस्टमर आपका एक्शन हो गया। अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट की, तो इन द ब्लूप्रिंट अगर अप्लायंस रिटेलर है तो कस्टमर एक्शन क्या क्या हो सकता है? कस्टमर एक्शन क्या हो सकता है? अगर कोई पर्सन कस्टमर जो है अप्लायंसेस जो है, मतलब एक अप्लायंसेस रिटेलर के यहाँ जाता है, यानी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, जैसे मान लीजिए कोई अप्लायंस लेने जा रहा है, तो कस्टमर का एक्शन सबसे पहले क्या हो सकता है? या तो वो करेगा विजिट वेबसाइट को, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझा रही हो, देखिए, या तो वो वेबसाइट विजिट करेगा, या तो फिर वो स्टोर को विजिट करेगा, या तो वो ब्राउज करेगा अप्लायंसेस के बारे में, ठीक है, वो डिस्कस करेगा ऑप्शंस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है, और वो सेल्स पर्सन से असिस्टेंस भी ले सकता है, ठीक है, डिलीवरी डेट के नोटिफिकेशन के बारे में पूछ सकता है, और फाइनली जो है वो अप्लायंस को
पेमेंट करना, दिस ऑल विल कम्स अंडर द कस्टमर जर्नी। ये सारे कस्टमर जर्नी में आएंगे आपके, ठीक है। डिलीवरी डेट नोटिफाई करना, फाइनली अप्लायंस को रिसीव करना, सेल असिस्टेंस वगैरह से प्रोडक्ट के बारे में पूछना, इट्स ऑल कम्स अंडर द कस्टमर या सर्विस कस्टमर जर्नी, ठीक है। तो ये पहला आपका एलिमेंट हो गया। समझ में आया फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या स्टेप्स करेगा, बेसिकली कौन कौन स्टेप्स लेगा कस्टमर? क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ कस्टमर की जर्नी कैसे होगी स्टार्ट? क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज फ्रंट स्टेज एक्शन। फ्रंट स्टेज एक्शन क्या होता है, इसमें लिखिए फ्रंट स्टेज एक्शन क्या है। व्हाट इज फ्रंट स्टेज एक्शन? सो फ्रंट स्टेज एक्शन जो है दैट इज ऑकर डायरेक्टली इन व्यू ऑफ कस्टमर, यानी जो कस्टमर को दिखेगा, कस्टमर को विजिबल होगा, ठीक है। ये जो एक्शन होगा ये ह्यूमन टू ह्यूमन या ह्यूमन टू कंप्यूटर, यानी इस तरीके के इसमें एक्शंस होंगे, ठीक है। एम्प्लॉइज जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है कस्टमर के साथ, और यहाँ पर ह्यूमन टू कंप्यूटर है, मतलब कि यहाँ सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी जैसे एटीएम वगैरह की भी बात की जाती है। तो इसमें लिखिए कि फ्रंट स्टेज एक्शन क्या होता है। लिखिए एक्शन दैट occurs directly in view of the customer, actions that occur directly in view of the customer, these actions can be human to human or human to computer actions, ठीक है। actions that occur directly in view of the customer, कस्टमर के सामने, कस्टमर को देखते हुए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक्शंस दैट ऑकर्स डायरेक्टली इन व्यू ऑफ द कस्टमर, और दीज एक्शंस, ये एक्शंस कैसे हो सकते हैं? ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है, यानी कस्टमर एक एम्प्लॉय से बात कर रहा है, कस्टमर जो है वो डायरेक्टली किसी डिजिटल फॉर्म से बेसिकली सर्विस ले रहा है, यानी कोई पर्सन सामने खड़ा नहीं है, बट दे कैन टेकिंग द हेल्प ऑफ सम डिजिटल थिंग्स, और वी कैन से कंप्यूटर की हेल्प ले रहा है, ठीक है। So these actions can be human to human or human to computer action. आगे लिखिए human to human actions are the steps, human to human actions are the steps and activities, human to human actions are the steps and activities that the contact employee performs. ह्यूमन टू ह्यूमन एक्शन में क्या होगा कि यानी जैसा कस्टमर का नीड होगा, एम्प्लॉइज वैसे ही एक्ट करेगा, वैसे ही एक्शन करेगा जब बेसिकली पर्सन का इंटरेक्शन कस्टमर के साथ हो रहा है। जैसे ही एम्प्लॉय इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर फ्रंट स्टेज में सबसे पहला एक्शन क्या होगा? एक तो जब वेबसाइट जैसे विजिट करेगा तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी होगा, यहाँ पर आपके सामने में कोई पर्सन नहीं होगा, यहाँ पर आपके सामने टेक्नोलॉजी होगा, इसीलिए यहाँ पर दोनों चीज बोला जा रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपके सामने सपोर्ट चैट होगा, कोई पर्सन इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बेसिकली आपका सपोर्ट चैट टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है और अभी एआई के थ्रू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फर्स्ट ये हुआ। सेकंड, अगर कोई कस्टमर जो है वो बिल्कुल स्टोर में एंटर कर रहा है, जब स्टोर में जब जाएगा तो ऐसे केस में फ्रंट स्टेज एम्प्लॉय जैसे इंटर मतलब जैसे इंटरेक्ट करेंगे कस्टमर के साथ, वैसे ही उसको वेलकम करेंगे, ग्रीट करेंगे स्टोर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शंस है वो दोनों तरीके का, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू कंप्यूटर। समझ में आ रही है पॉइंट समझ में आ रहा है? यस मैम। आगे लिखे इसमें उसी तरीके से एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा। तो ये पॉइंट क्या था? ह्यूमन टू ह्यूमन एक्शंस आर द स्टेप्स एंड एक्टिविटीज दैट द कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय में कौन होगा? द पर्सन हु इंटरेक्ट विद द कस्टमर। कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय कौन है? ब्रैकेट में लिखना चाहता तो लिख लेना, द एम्प्लॉय हु इंटरेक्ट विद कस्टमर, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय। कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय कौन होगा? द एम्प्लॉय हु इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स, ठीक है। सो दैट द कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्म्स, यानी जो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म करेगा, परफॉर्म उसी तरीके से करेगा जैसे कस्टमर सामने आया वैसे ग्रीट करना एंड ऑल। ह्यूमन टू कंप्यूटर एक्शन लिखे क्या होता है? ह्यूमन टू कंप्यूटर एक्शन क्या होगा?
customer interact with the self-service technology, सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी का मतलब जो जैसे घर पे बैठे बैठे ऐप डाउनलोड कर लिया और खुद से स्टोर को देख लिया, ठीक है। सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी एग्जांपल में क्या हो सकता है, मोबाइल ऐप, एटीएम, सब हो सकता है आपका एग्जांपल, मोबाइल ऐप, एटीएम। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर की जर्नी तो ये थी, ये तो कस्टमर का एक्शन हुआ। विजिट किया वेबसाइट, सपोर्ट चैट हुआ, ह्यूमन टू कंप्यूटर। विजिट किया स्टोर, वेलकम टू स्टोर, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। क्लियर हो गया। अब ये जो चीज है इसको याद रखिएगा, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज फ्रंट स्टेज। फ्रंट स्टेज इज समथिंग व्हिच इज टेकन हेल्प बाय द ह्यूमन, यानी एम्प्लॉय इंटरेक्ट करेगा कस्टमर के साथ या फिर मशीन इंटरेक्ट करेगा आपके कस्टमर के साथ। जैसे कि यहाँ पर डिलीवरी टाइम्स और इन्वेंट्री चेक करना है, एम्प्लॉय बेसिकली कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा और चेक करेगा। परचेज करेगा, प्रोवाइड टाइम कब बेसिकली प्रोवाइड होगा वो भी कस्टमर वो एम्प्लॉइज बताएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए स्टेप, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, बढ़ते अब हम आगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है लिखिए, नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है दैट इज बैक स्टेज एक्शन। फ्रंट स्टेज और कस्टमर एक्शन, कंज्यूमर एक्शन। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट, कस्टमर के एक्शंस और जर्नी, और साथ साथ में नेक्स्ट जो फ्रंट स्टेज एक्शन करा था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बैक स्टेज एक्शन। बैक स्टेज एक्शन, बैक स्टेज एक्शन में लिखिए स्टेप्स एंड एक्टिविटीज दैट ऑकर, स्टेप्स एंड एक्टिविटीज दैट ऑकर, स्टेप्स एंड एक्टिविटीज दैट ऑकर्स बिहाइंड द सीन, यानी कि यहाँ पे कस्टमर को वो सारी चीजें नहीं दिखेंगे जो सारे एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, स्टेप्स एंड एक्शन, जैसे कैसे होता है कि कभी कोई ड्रामा चलता है तो आगे कुछ लोग होते हैं जो गाना गा रहे होते हैं और पीछे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, या फिर बैक साइड में कुछ बेसिकली म्यूजिक वगैरह चल रहा होता है, या फिर बैक साइड कुछ प्रोसेस होता है वो हमको नहीं दिखता है। ठीक है, पर्दे के पीछे कहते हैं जिसको बेसिकली बैक स्टेज हो। तो यहाँ पर वही है, steps and activities that occur behind the scenes to support the on stage happening, यानी जो on stage happen हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस और एक्शंस लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं बैक स्टेज एक्शंस। ठीक है, steps and activities that occur behind the scenes to support on stage happening, These actions could be performed by the backstage employee. These actions could be performed by backstage employee. जैसे मैंने एग्जांपल डोमिनोज के कुक का दिया था। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे backstage action, the steps and activities that occurs behind the scenes to support the on stage happening. These actions could be performed by a backstage employees. Example में लिखिए cook in the kitchen. ठीक है, cook in the kitchen. और फ्रंट स्टेज एम्प्लॉइज कौन होगा, जैसे आपके वेटर हो गए जो आपसे पेमेंट ले रहे हो, वो सारे आपके क्या होंगे, आपके फ्रंट स्टेज हो जाएंगे। कुक जो है वो बैक साइड बना रहा है बेसिकली खाना, वो बैक स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, अब हम अप्लायंसेस कंपनी का एग्जांपल ही ले रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कि अ वेयरहाउस एम्प्लॉय इनपुट्स अपडेट इन्वेंट्री नंबर। अब यहाँ बैक स्टेज में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सी इन्वेंट्री कम है, कौन सी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक है, इसको सबको मैनेज करने के लिए यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा उसको स्टैब्लिश किया जाएगा बैक स्टेज में। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्ड टू चैट क्वेश्चन दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ बैक स्टेज एक्शन, बिकॉज यू कांट एबल टू सी द पर्सन हु इज बेसिकली मैसेजिंग यू, एंड ये बैक स्टेज एक्शन में मतलब आ सकता है रिस्पॉन्ड टू चैट क्वेश्चन। समटाइम्स जब कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव्स आपसे चैट कर रहे हैं, बट अभी ये सिनेरियो नहीं है, अब तो एआई आ गया है ना, तो सारे फीडेड होते हैं ऑलरेडी। अब ये सारे आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आया। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बेसिकली फुलफिलमेंट क्यू, पता नहीं ये क्यों लिखा है, बस हाँ, जो भी वैसे एक्शन जो फ्रंट स्टेज में नहीं हो रहे बैक साइड हो रहे,
ये आपके आ जाएंगे आपके बैक स्टेज एक्शन में। बैक स्टेज एक्शन में जैसे कि आप कब एम्प्लॉय जो है वो चेक करेंगे कि कब शिपिंग होगा, कब डिलीवरी होगा प्रोडक्ट का, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द आपका किस चीज में आएगा, वो आपका आएगा बैक स्टेज में। तो बैक स्टेज में क्या क्या चीजें आ सकती है, एक दो पॉइंट लिख लीजिए बैक स्टेज में क्या क्या आएगा। Updates of inventory numbers, update of inventory numbers, ठीक है, update of inventory numbers, ठीक है। साथ साथ में पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जहां पे प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। अ शिपिंग एम्प्लॉय, यानी शिपिंग एम्प्लॉय जो है, अ शिपिंग एम्प्लॉय चेक द यूनिट कंडीशंस एंड क्वालिटी, यानी कि शिपिंग पर्सन जो शिप कर रहा है, प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, शिप कर रहा है, डिलीवर करने में हेल्प कर रहा है, वो कंडीशन एंड क्वालिटी किसका देखेगा, बेसिकली आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। एक चैट असिस्टेंट एम्प्लॉय मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ये सारे आपके बैक स्टेज में चीजें चलेंगी। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह, चैट असिस्टेंट वगैरह, जो कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करेगा, बट प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, सर्विस को डिलीवर करने में जितना फ्रंट स्टेज का कंट्रीब्यूशन होगा, सेम उतना ही बैक स्टेज का होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बैक स्टेज जो एक्शंस होगा फ्रंट स्टेज के जितना ही वो इक्वल बेसिकली कंट्रीब्यूशन उसका भी होगा। तो बैक स्टेज एक्शन इज समथिंग व्हिच इज लाइक चैट को रिस्पॉन्ड करना, इन्वेंटरी मैनेज करना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को संभालना, क्यू को कैसे मैनेज करे वो, अकाउंटिंग वगैरह, डेटास को, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द बैक स्टेज एक्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसेसेस, जैसे यहाँ पे प्रोसेसेस लिखा है ना, सपोर्ट प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस को एंड व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्लूप्रिंट्स के कुछ एलिमेंट्स जो 2-3 हमने डिस्कस किया है। कौन मुझे शॉर्ट में सारे पॉइंट्स बताएगा एक एक करके। प्रिंट सर्विस ब्लूप्रिंट एक तरह का मींस डायग्राम है जो कि विजुअलाइज मींस रिलेशनशिप बताता है किस डिफरेंट सर्विस कंपोनेंट के बीच में। वो क्या क्या कंपोनेंट है, पीपल है, प्रॉप्स है, प्रॉप्स के अंदर आपने बताया कि फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस हो गया, एंड प्रोसेसेस। और मैम इसका बेनिफिट आपने बताया कि यह वीकनेसेस को डिस्कवर करता है। किसके वीकनेसेस को? इसका वीकनेसेस को डिस्कवर करता है, मींस जो भी ये है सर्विस ब्लूप्रिंट, ये मींस जितना भी वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिस्कवर करता है। और मैम आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी, मैम अपॉर्चुनिटी को भी आइडेंटिफाई करता है। इसमें आपने बताया एक और पॉइंट लिख लेना कि इट आल्सो हेल्प टू यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑन द ऑप्टिमल, ठीक है, ये भी किसका हो सकता है बेनिफिट। ओके दिवांशी, प्लीज एलैबोरेट। मैम किसको, ये वाला कौन सा पॉइंट अभी जो बोली? अपॉर्चुनिटी। अच्छा मैम इसमें बताती हूँ, इसमें रिलेशनशिप बताता है, मीन्स क्या क्या पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जितना भी रिपीटेड मैनर में वर्क हो रहा है उसको रिड्यूस करता है ये। और मैं बता रही हूँ, और एक दो पॉइंट मेरी छूट गई है, आप लिखवा रही थी तो मैं बीच में नहीं बोल पाई इसका कि ये लास्ट जो था स्टेप दैट इज प्रोसेस। यस मैम, फ्रंट स्टेज एक्शन में जो था उसमें जो ह्यूमन एक्शन होता है और ह्यूमन कंप्यूटर एक्शन होता है। ह्यूमन एक्शन में सारे स्टेप्स वगैरह लिए जाते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय, एक मिनट, इसमें कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं,
कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं। कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय वो होते हैं जो कि कस्टमर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। और दूसरा होता है ह्यूमन टू कंप्यूटर एक्शन। इसमें होता है जैसे एग्जांपल मोबाइल ऐप या एटीएम, जिसमें जो ह्यूमन होते हैं वो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि चैट वगैरह करना। तो उसमें जो सामने परफॉर्म कर रहा है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन सामने वाला कंप्यूटर मतलब कैसे, मतलब किसी ह्यूमन से डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट, फिर बैक स्टेज एक्शन था। ठीक है, बैक स्टेज को रहने दीजिए, कस्टमर एक्शन और फ्रंट स्टेज एक्शन ही करवाया है, तो ये था एग्जाम में, इसीलिए